We are going to start with the chapter Indigo, written by Louis Fischer, in which Gandhiji is depicted as a leader who leads the mind of others and convinces them to follow his set of ideas and beliefs. In this chapter, which depicts Champaran episode, it was a turning point not only in Gandhiji life but also in the history of Indian freedom struggle. It also proves Gandhiji ideals of truth, non-violence and empathy for the deprived, and this struggle is for the sharecroppers that we are going to read. Let's start. Louis Fischer was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fischer made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following Indigo is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhiji by Times Educational Supplement. तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिगो, ये गांधी जी की लाइफ पर लिखी हुई बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक एक्सर्प्ट है, पार्ट है, विच इज़ रिटन बाय लुइस फाइशर, एंड दिस बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी जी. Okay. Now we are going to start the chapter. Very interesting and very important chapter if we consider our board exams. So let's start. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British, and it was in 1917. So, Louis Fischer went to meet Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram. When Gandhiji told, I will tell you that when I felt that in my country the Britishers should leave. गांधी जी 1942 के अंदर लुइस फाइशर को बताते हैं, जब वो उनके आश्रम में मिलने आते हैं, कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे हुआ कि जब मुझे ये अर्ज हुआ, मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट आई कि इन ब्रिटिशर्स को इंडिया को छोड़ देना चाहिए, एंड इट इज़ द मैटर ऑफ 1917. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. गांधी जी मीटिंग के अंदर गए थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी लखनऊ के अंदर, एंड देयर वर 2301 delegates. Remember the dates and the numbers because you are going to have the MCQs in board exams. So there were 2301 delegates and many visitors. So in that meeting, near about 2301 delegates, it means जो members थे और visitors वहाँ आए हुए थे. So during the proceedings, it means the working, गांधी जी recounted. तो गांधी जी ये याद करते हुए कहते हैं, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. Emaciated means weak. तो एक किसान, जैसे कि भारत का किसान दिखाई देता है, गरीब और कमज़ोर, वो गांधी जी से मिलने आया और उसने क्या कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, आई एम फ्रॉम चंपारण और मैं चंपारण से हूँ, आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ आप हमारे चंपारण में
आइए, गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि गांधी जी ने चंपारण का नाम ही नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. चंपारण जो था वो हिमालय, बहुत ऊंचे हिमालय के फुट हिल्स पर सिचुएटेड था, जो बिल्कुल नेपाल के पास पड़ता है. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, भारत के अंदर जैसा कि पहले पुराने समय के अंदर जो सिस्टम था, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. चंपारण के किसान जो थे वो शेयर क्रॉपर थे. हु आर द शेयर क्रॉपर्स? जिनकी ज़मीन अपनी नहीं होती है, वो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं और रिटर्न में उनको रेंट देते हैं. दे आर कॉल्ड द शेयर क्रॉपर. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. तो चंपारण के अंदर शेयर क्रॉपिंग थी. राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे. ही वॉज इलिटरेट, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट रेजोल्यूट. रेजोल्यूट मीन्स ही वॉज वेरी मच डिसीसिव, determined, and he had come to Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. इसलिए वो उस मीटिंग में आए थे, कांग्रेस सेशन के अंदर आए थे कि वो कंप्लेन कर सकें जो चंपारण के अंदर अन्याय हो रहा है लैंडलॉर्ड सिस्टम के थ्रू. एंड somebody had probably said, तो शायद किसी ने वहाँ उसे सजेस्ट किया होगा कि आप जाइए और गांधी जी से मिलिए. गांधी टोल्ड शुक्ला. गांधी जी इन रिटर्न उन्हें बताते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट है कानपुर के अंदर, एंड ही वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भी कहीं जाना है. शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर. मैंने जब शुक्ला के बारे में बताना शुरू किया था, द टू एडजेक्टिव्स वर यूज्ड फॉर हिम, दैट इज़ वन वॉज इलिटरेट एंड द सेकेंड वन was resolute. So how it showed that he was a man of resolution? Resolution means he was a man of determination. गांधी जी जहाँ जहाँ गए, शुक्ला भी वहाँ वहाँ गए, शोइंग कि वो डिसीसिव हैं, गांधी जी को चंपारण लेकर ही जाएंगे. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम. शुक्ला जी, गांधी जहाँ जहाँ गांधी जी, शुक्ला जी वहाँ पीछे पीछे. तो गांधी जी अपने आश्रम आ गए जो कि अहमदाबाद के पास है. शुक्ला जी वहाँ भी आश्रम में उनके साथ. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड. हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी को नहीं छोड़ा. ही बेग्ड, ही प्लीटेड, ही इंट्रीटेड कि कोई तो सर डेट को फिक्स कर दीजिए. इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, Gandhi ji said, I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. तो गांधी जी ने देखा बहुत डिसीसिव है और स्टोरी जो है उसकी इट वाज टचिंग वन. सो ही सेड कि ठीक है, मैं कलकत्ता इस डेट को आऊँगा, तुम वहाँ आना, वहाँ से हम लोग तुम्हारे चंपारण में चलेंगे. Months passed. Shukla was sitting on his haunches. Haunches means on his knees at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. तो महीनों बीत गए और जब गांधी जी कलकत्ता पहुँचे, शुक्ला जी was sitting there on his knees. And he waited till गांधी जी was free. इंतज़ार किया कि गांधी जी. Then the two of them, फिर दोनों ट्रेन पर चढ़े for the city of Patna in बिहार. बिहार में कहाँ? सिटी ऑफ पटना के लिए. देयर, अब कलकत्ता से जो है वो कलकत्ता में मिले थे. देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर. ऑल द थिंग्स हैव टू बी रिमेंबर कि वो कहाँ से ट्रेन चढ़े, कहाँ कहाँ गए, रास्ते में किस किस से मिले. यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद. वहाँ से शुक्ला जी उन्हें राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए. हु लेटर बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड देन ऑफ इंडिया. कौन से राजेंद्र प्रसाद? जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, फिर हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बने. राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट इन द हाउस, ही वॉज आउट ऑफ द टाउन, बट सर्वेंट्स न्यू Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecropper. वो शुक्ला को जानते थे कि ये बंदा आता है और उनके मास्टर को बार पेस्टर करता है, फोर्स करता है कि सर हमारी हेल्प कीजिए इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के अंदर. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड. तो उन्होंने सोचा किसान हैं, गांधी जी साथ थे, दे कांट रिकग्नाइज गांधी जी, सो ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड. और गांधी जी जो थे, हिज कंपेनियन whom they took to be another peasant, जिन्होंने सोचा कि हाँ वो भी कोई दूसरा
दूसरा किसान होगा, दोनों वहाँ पर उनके घर ज़मीन पर बैठे रहे. बट even Gandhi ji was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. यहाँ तक कि गांधी जी को पानी भी नहीं लेने दिया गया कुएं से कि कहीं he must not be an untouchable, कि कहीं उनके हाथ को पानी लग जाए और वो पानी जो है वापस कुएं में गिर जाए और जिससे पानी खराब हो जाए, पल्यूट हो जाए. हाउ डिड दे नो, उनको कैसे पता होता कि गांधी जी एक अनटचेबल नहीं हैं. गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर. गांधी जी ने सोचा डायरेक्ट जो है चंपारण नहीं जाना है, पहले मुजफ्फरपुर जाना है. तो ट्रेन कहाँ के लिए ली थी? पटना के लिए. और सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा? मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में आता था. टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, क्योंकि उन्हें लक्ष्य हैं ही अकॉर्डिंगली. तो उन्होंने अपने इसके अकॉर्डिंग जो है सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, अंडरलाइन दिस, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल. JB कृपलानी को उन्होंने टेलीग्राम भेजा, जिन्हें वो टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे. द ट्रेन. Now the train arrived at midnight, 15 April 1917. Underline. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. वहाँ पर कृपलानी जो है स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ. गांधी जी stayed there for 2 days in the home of प्रोफेसर मलकानी. देखिए कृपलानी उनको लेने के लिए आए थे, रहे किनके घर? प्रोफेसर मलकानी के घर. अ टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. नेक्स्ट, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज. इफ आई आस्क यू व्हाट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, what was the extraordinary thing in those days? So let me tell you, extraordinary thing to let the people stay in the house of those who are in the service of the government people. It is explained in the next lines. It was an extraordinary thing in those days. और उन दिनों ये एक बहुत extraordinary बात थी for a government professor, कि एक सरकारी नौकर प्रोफेसर to harbor, to give a shelter to a man like me, कि एक ऐसे आदमी को अपने घर में ठहराना. कैसे आदमी को? In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. छोटे शहरों के अंदर जो इंडियंस से वो डरते थे ऐसे लोगों को सिंपैथी शो करने के लिए, जो ये चाहते थे कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इंडिया का ही रूल हो, ना कि ब्रिटिशर्स हो. तो ऐसे लोगों को अपने घर में रखना, वो भी ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं, अगर वो ऐसे लोगों को अपने घर में रखते हैं जो कि होम रूल को एडवोकेट करते हैं, प्रेफर करते हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी. The news of Gandhi advent means arrival, and of the nature of his mission, कि गांधी जी किसके लिए आए हैं, गांधी जी आ गए हैं, ये पूरी न्यूज़ जो है पूरी मुजफ्फरपुर के अंदर स्प्रेड हो गई. And to Champaran also, sharecropper from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. लोग बड़े excited, बड़े curious होते थे उस टाइम में, तो they started coming to मुजफ्फरपुर. चंपारण से पैदल आना शुरू हो गए ये देखने के लिए, जो भी कन्वेंस मिला पैदल आना शुरू कर दिया, या कुछ भी मिला उनको, वो उस पर्सन को देखना चाहते थे who was fighting for them. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. अब मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया गया, अभी बताइए गांधी जी को कि क्या केस है. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट. उस समय में वो पीजेंट्स के ग्रुप को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका केस लड़ रहे थे. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फ़ी. उन्होंने केस बताया और ये भी बताया कि वो कितना फ़ी चार्ज कर रहे हैं. नाउ गांधी जी chided the lawyer for collecting big fee. chided होता है scolded, reprimanded. गांधी जी ने लॉयर को डांट लगाई कि वो इतनी ज़्यादा फी. come to the conclusion that we should stop going
टू लॉ कोर्ट्स। गांधी जी कहते हैं मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, क्योंकि इस तरीके के केस वहाँ ले जाना कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ पर जो पीजेंट्स हैं इतने क्रश्ड हैं, दबे हुए हैं, फियर स्ट्रिकन हैं, डरे हुए हैं। एंड लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। सपोज़ आप एक केस फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन आप जिसके अगेंस्ट केस को फाइल कर रहे हैं आप उस बंदे से इतना डरते हैं, देन अगर आप उस केस को जीत भी जाएंगे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, क्योंकि आप उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने राइट्स को यूज़ कर पाएंगे। तो गांधी जी को लगता है कि ये यूज़लेस है। अगर हमारे पीजेंट्स डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, तो बेटर क्या है, द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। पहला ज़रूरी क्या है कि इन लोगों को डर से आज़ाद कराया जाए। So here most of the arable land, arable means fertile land, in the Champa divided into large estates, I think owned by Englishmen। तो चंपारण के अंदर जो ज़मीन थी, फर्टाइल ज़मीन थी, वो बड़े बड़े इस्टेट्स के अंदर जो है बांटी हुई थी, और जिनके मालिक कौन थे, इंग्लिशमैन थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टैनेंट्स, जिनके ऊपर शेयर क्रॉपर्स कौन थे, इंडियंस थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो मेन कमर्शियल क्रॉप थी, यानी कि जिसे आप बाज़ार में बेच के पैसा कमा सकते हैं, वो इंडिगो थी। इंडिगो अगर आप समझते हैं तो हम जो कपड़ों में नील लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इंडिगो। द लैंड लॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, क्योंकि ये चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, खूब पैसा आता था इससे, तो लैंड लॉर्ड कंपेल करते थे सभी टेनेंट्स को टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग, की कितनी जितनी भी ज़मीन है उसके 15% ज़मीन पर वो इंडिगो को प्लांट करेंगे, और पूरा का पूरा जो उनका हार्वेस्ट होगा एज अ रेंट वो इंग्लिशमैन को देंगे। दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक बहुत बड़ा लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट था। Presently, the landlord learned that Germany had developed synthetic indigo। तभी उन लोगों को इस बात का पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, तो क्रॉप इंडिगो की ज़रूरत नहीं है। सो दे देयर अपॉन obtained agreement from the sharecrop to pay them compensation। अब भारतीय किसान इतने इनोसेंट हैं, इतने you can say they are so you can say that they believe the others so easily, कि उन्हें ये कहा गया कि हम तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से, अरेंजमेंट से रिलीज़ कर देते हैं, जस्ट गिव द कंपनसेशन फॉर दिस। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly। कुछ लोगों ने तो इसको अपोज किया, लेकिन कुछ ने इसे साइन कर दिया willingly। Those who resisted, जिन्होंने इसको अपोज किया, उन्होंने लॉयर्स को एंगेज किया, और लैंडलॉर्ड ने इट रिटर्न के अंदर ठग्स हायर कर लिए, बाउंसर्स हक कर लिए। Meanwhile the information about synthetic, धीरे धीरे ये खबर जो है इलिटरेट पीजेंट तक भी पहुंच गई, जिन्होंने साइन किया था, तो वो लोग भी अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया। तो ये केस अब यहाँ तक पहुँचा था जब गांधी जी चंपारण पहुँचे। सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडिगो दैट वी हैव डन, एंड प्लीज़ गो थ्रू line to line and try to underline all the information, you get it collected till now the chapter that we have read, and I'll come back with the second part of the chapter. Thank you and have a nice